students, today we are going to learn the lesson The Wind and the Sun from class 2nd English NCERT. The Wind and the Sun. Wind says, "Sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can." Sun smiling, "We will see who is stronger. I will let you try first." इसमें विंड सन से कहती है कि जो आदमी जा रहा है उसका कोट कौन निकालता है देखते हैं। तो सन कहता है ठीक है, देखते हैं कौन है स्ट्रॉन्गर, मैं या तुम। विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, "Man, how strong the wind is today! It is blowing my coat away. I must hold it tightly round myself." Wind blowing harder. विंड जो है बहुत तेज़ी से फूंक मारने लगती है। मैन कहता है कि आज कितनी तेज़ हवा चल रही है, मेरा कोट ना उड़ जाए, मुझे अपने कोट को एकदम टाइटली पकड़ना चाहिए। विंड और तेज़ से ब्लोइंग करना स्टार्ट करती है, ऐसे। इस तरह से विंड एंड सन में कंपटीशन हो गया कि इस मैन का कोट जो है कौन निकालता है। और विंड ट्राई करती रही। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। मैन pulling his coat more tightly. How cold it is. Wind, "Sun, I give up. I cannot get his coat off." Sun, "Now it is my turn. Let me try. He shines hard." Man, "What a funny day. It was so cold and now it is so hot." तो मैन ने जैसे को अपना कोट जो है टाइटली पकड़ लिया, क्योंकि तूफान बहुत चल रहा था, विंड जो है बहुत ब्लो कर रही थी। और आखिरकार विंड ने कहा कि सन, मैं नहीं कर सकती, मैं हार गई। तो सन कहता है अब मेरा टर्न है, अब मेरी बारी है, अब मुझे ट्राई करने दो। और वो बहुत ही तेज़ी से चमकने लगता है। तो मैन कहता है अरे आज क्या फनी डे है, कभी ठंड लग रही है तो कभी एकदम से गर्मी लग रही है। सन शाइनिंग हार्डर, "I will make him feel hotter and hotter." Man wiping his face, "and must take off my coat." Sun, "Wind, I have won. I have made him take off his coat." तो जो है सन जो है बहुत ज़्यादा तेज चमकने लगता है, जिससे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। अब वो मैन कहता है कि आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और अपना फेस को साफ करने लगता है। सन विंड से कहता है देखा, मैं जीत गया, मैंने आखिरकार उस आदमी को अपना कोट निकालने पे मैंने मजबूर कर दिया। न्यू वर्ड्स ऑफ द स्टोरी। ROAD रोड, COAT कोट, QUICKLY क्विकली, STRONGER स्ट्रॉन्गर, CHEEKS चेक्स, WON। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस स्टोरी में क्या हुआ। इस स्टोरी में विंड और सन में कंपटीशन हुआ। जो उस आदमी का कोट निकालेगा, कोट निकालने पे मजबूर करेगा, वो विनर होगा। विंड ने भी बहुत ट्राई किया और सन ने भी, और एट लास्ट हु इज़ द विनर? सन इज़ द विनर। नाउ द रीडिंग ऑफ द स्टोरी। विंड, "Sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can." Sun smiling, "We will see who is stronger. I will let you try first." Wind puffing his cheeks and blowing hard. Man, "How strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold it tightly round myself." Wind blowing harder. Man pulling his coat tightly. "How cold it is." Wind, "Sun, I give up. I cannot get his coat off." Sun, "Now it is my turn. Let me try. He shines hard." Man, "What a funny day. It was so cold and now it is so hot." Sun shining harder, "I will make him feel hotter and hotter." Man wiping his face, "I must take off my coat." Sun, "Wind, I have won. I have made him take off his coat." अच्छा, आपने सुन ली है स्टोरी। अच्छा, कौन बताएगा कि मुझे कि इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? यस, थिंक अबाउट इट। सोचो।
Okay, I will tell you. The moral of the story is anger and force won't melt any ice, but gentleness and warmth can do the job. जो चीज़ हम गुस्से से या प्रेशर देके या फोर्स देकर हम नहीं कर सकते, पर वही चीज़ हम प्यार से जेंटल रह के हम कर सकते हैं, है ना. So, students, the moral of the story is anger and force won't melt any ice, but gentleness and warmth can do the job. The new words we have seen before. Now the question 1. Here are some words and you have to make the sentence by using these words. First word is road. Road. Road means an open way for travel or transportation. Example sentence is, first one, we took the country road to meet our relatives. Second sentence is, there was a traffic jam on the road. Now the second words, coat. Coat means an outer garment with sleeves to make you feel warm. Example sentence is, I will be wearing coat at the party tonight. Second sentence is, she gifted me a black coat on my birthday. Third word is quickly. Quickly. Quickly का meaning है at a fast speed. Example sentence is, we walked quickly to catch the train. Second sentence is, the dog ran quickly to catch the cat. Fourth word is stronger. Stronger means more powerful. Example sentence is, Rohan is stronger than Smith. Second sentence is, the sun was stronger than the wind. Fifth word is cheeks. 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 Cheeks means either side of the face below the eye. Example sentence is, her cheeks are pink in color. Second sentence is, my cheeks get red during winters. You have to write in your English copy. Sixth word is WON. To be successful or victory. Example is, our team won the football match. Second sentence is, Saima won the winner championship trophy this year. So students, you have to write all these new words, their meanings and example sentences in your copy, and also learn the meanings and try to write example sentences other than this. Now reading is fun. Question 1 is, what did the wind do to get the man's coat off? विंड ने ऐसी कौन सी कोशिश की जिससे वो मैन जो है अपना कोट निकाल दे. आंसर इज, द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. विंड ने बहुत कोशिश की, उसने बहुत तेज बहना स्टार्ट किया जिससे वो आदमी जो है कोट निकाल दे. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? सन ने कौन सी कोशिश की जिससे वो आदमी जो है अपना कोट निकाल दे. Answer is, the sun started shining hard to get the man's coat off. सन ने बहुत तेज चमकना स्टार्ट कर दिया जिससे वो आदमी जो है गर्मी से अपना कोट निकाल दे. सन ने ज़्यादा से ज़्यादा तेज चमकना शुरू कर दिया जिससे वो आदमी अपना कोट निकाल सके. उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी ना. Now the third question is, who won in the end? सबसे लास्ट में कौन जीता? सबको ही पता ही है इसका आंसर कि आखिरकार कौन जीता. आंसर इज द सन वन इन द एंड. आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दिस टू होम? किसने किससे कहा? फर्स्ट
सेंटेंस इज आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। ये सेंटेंस किसने किससे कहा, ये आपको अपनी स्टोरी में ढूंढना है जो आपकी बुक में दी गई है। सेकेंड सेंटेंस इज आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। ये भी आपको सेंटेंस उसमें फाइंड आउट करना है। हाउ कोल्ड इट इज, ये सेंटेंस आपको अपनी बुक में दी गई स्टोरी में ढूंढना है। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। एंड लास्ट सेंटेंस इज आई हैव वन। आपको ये सेंटेंसेस अपनी बुक में जो स्टोरी दी गई है द विंड एंड द सन, उसमें आपको ये ढूंढने हैं और लिखना है कि ये सेंटेंस जो है किसने किससे कहा। नाउ द आंसर्स, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। ये सेंटेंस किसने किससे कहा, द विंड सेड टू द सन। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये किसने कहा, द सन सेड टू द विंड। हाउ कोल्ड इट इज, दिस सेंटेंस इज said by the man to himself. I give up, I cannot get his coat off. ये सेंटेंस किसने कहा, विंड ने सन से, द विंड टू द सन। I have one, ये सेंटेंस किसने कहा, द सन टू द विंड। तो समझ में आया आपको, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इंग्लिश की कॉपी में आपको ये लिखना है। नाउ लेट अस थिंक, अब आपको सोचना है, यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है उसके बारे में आपको सोचना है कि इसमें हमें करना क्या चाहिए। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू? चूज एन आंसर। रोहन क्या कर रहा था, गीता के हाथ से जो नई बुक है उसकी छीन रहा था। तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या करना चाहिए हमें, ये आपको बताना है। गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, एंड शेयर व्हाई यू फील सो ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स आपको इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया गया है, गीता रन्स अवे विथ हर बुक, मतलब गीता को अपनी बुक लेकर भाग जाना चाहिए, तो ये सही है, सही कर रही है वो। सेकंड सेंटेंस में दिया है गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता को रोहन के साथ लड़ाई करनी चाहिए। थर्ड सेंटेंस में दिया है गीता टॉक्स टू रोहन, थर्ड सेंटेंस में दिया है कि गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। फोर्थ सेंटेंस इज गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता कॉर्नर में बैठ के रोने लगी। तो इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? मुझे तो लगता है कि गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए, गीता को रोहन को समझाना चाहिए कि इस तरह से हरकत करनी गलत बात है, किसी की बुक छीननी ये सही नहीं है। तो आंसर इज द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी दैट गीता टॉक्स टू रोहन। I feel so because by talking she can make Rohan understand that he should not snatch book from her. Rest of the options are not good manners. तो इन्होंने भी यही बताया है कि गीता को रोहन के साथ बात कर लेनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि इस तरह से किसी की चीज़ छीननी एक गलत बात होती है, और जो इसमें बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं ये गुड मैनर्स नहीं है, वो एक बैड मैनर्स है। Now say aloud. Find a rhyming word from the story for each of these words. नीचे दिए गए वर्ड्स का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। फर्स्ट वर्ड इज BUN बन, HOLD होल्ड, BOAT बोट, FAN फैन, SUNNY सनी एंड POT पॉट। राइमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? जिनका साउंड एक जैसे आता है। तो ऐसे वर्ड्स आपको अपनी बुक में दी गई स्टोरी में से ढूंढने हैं। बन, होल्ड, बोट, फैन, सनी, पॉट। अब इनके आंसर्स हैं। बन का राइमिंग वर्ड है सन, होल्ड का कोल्ड, बोट कोट, फैन मैन, सनी फनी, पॉट हॉट। आप ये अपने
बुक में से भी सर्च करके आप लिख सकते हो, जो स्टोरी के अंदर ही ये वर्ड्स छुपे हुए हैं। बस आपको ये फाइंड आउट करने हैं और इनके राइमिंग वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। बर्न, होल्ड, बोट, फैन, सनी एंड पॉट के। Now here are some doing words in the story like walking, smiling, blowing, pulling. Find 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो डूइंग वर्ड्स हैं। ऐसे ही आपको और 3 वर्ड्स स्टोरी में से ढूंढने हैं और वो आपको यहाँ पे लिखने हैं जिनकी एंडिंग जो है आईएनजी फॉर्म में होती हो। ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। आंसर इज वॉकिंग, पफिंग, शाइनिंग। ये वर्ड्स आपको स्टोरी के अंदर मिलेंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो डूइंग वर्ड्स है। वॉक करना मतलब चलना होता है। पफिंग मतलब क्या होता है? पफिंग मीन्स होता है गालों को फुलाना। शाइनिंग, शाइनिंग मतलब बहुत तेज चमकना। तो इसी तरह से ऊपर डूइंग वर्ड्स दिए हैं। स्माइलिंग मीन्स स्माइल करना, ब्लोइंग मतलब फूंक मारना, पुलिंग मीन्स खींचना। Now choose the right word from the box below and fill in the blanks. यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको वर्ड्स जो करेक्ट वर्ड है उनको चूज करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। One day the wind and the sun had a competition. They dashed to make a man take off his coat. First, the wind is dash hard. The man dashed his coat tightly round himself. Then the sun dash shining hard. The man dash hot and he dash off his coat. यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको वर्ड्स जो सही है वो भरने हैं। जैसे वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कंपटीशन। दे यहाँ पे फिल में आएगा, फिलअप्स में आएगा वांटेड। दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड, यहाँ पे आएगा आंसर ब्लू, BLEW। द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, यहाँ पे आंसर आएगा पुल्ड, PULLED। देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, यहाँ का आंसर है स्टार्टेड, STARTED। द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, तो यहाँ के आंसर है FELT, फेल्ट एंड टुक। ये सारे आंसर्स आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स। हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एक दूसरे से मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। हॉट मीन्स बहुत गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, बिग मीन्स बहुत बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत पावरफुल, वीक मतलब बहुत कमज़ोर। अब आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है गुड, सेकंड है हार्ड, थर्ड इज टॉल एंड फोर्थ इज ब्लैक। गुड मीन्स बहुत अच्छा, उसका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। हार्ड मीन्स बहुत ही कठोर, तो गुड का अपोजिट वर्ड है बैड। हार्ड का अपोजिट वर्ड है सॉफ्ट। टॉल मीन्स बहुत लंबा, तो उसका अपोजिट वर्ड है शॉर्ट, मीन्स बहुत छोटा। ब्लैक, ब्लैक जो कलर होता है और उसका अपोजिट वर्ड है वाइट। गुड, बैड, हार्ड, सॉफ्ट, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट। तो ये वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसका एक आपको डायरी टाइप भी आप बना सकते हो, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। उसे देख के आप सीख लेना, जिसमें बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स होंगे, जो अपोजिट वर्ड्स का एक प्रोजेक्ट है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल्स। यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड फन है, यहाँ पे एक पजल दिया गया है और आपको इस पजल में दिए गए वर्ड्स को कंप्लीट करना है। इसकी आपको स्पेलिंग ढूंढनी है।
तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं और उन जो भी वर्ड्स यहाँ पे हैं उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा मैन दिखाई दे रहा है, सेकेंड पिक्चर में आपको कोट दिखाई दे रहा है, थर्ड पिक्चर में सन दिखाई दे रहा है और फोर्थ पिक्चर में विंड दिखाई दे रही है। तो आपको इनकी स्पेलिंग लिख के ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड बनेगा MAN मैन, सेकेंड वर्ड इज COAT कोट, थर्ड वर्ड इज SUN सन एंड फोर्थ वर्ड इज WIND विंड। ये आपको पजल जो है वो कॉपी में लिखना है और ड्राइंग्स भी आपको कॉपी में। टीम टाइम, act out the play The Wind and the Sun in class. Make paper marks for the sun and the wind using colored chart paper. Everybody can take turns to be the wind, the sun or the man. Now write 2 sentences about one of the masks. आपको क्या करना है, इसकी एक्टिंग करनी है, विंड और सन का रोल प्ले करना है। पहले इनके लिए आपको पेपर मास्क बनाने हैं जो सन के लिए हो अलग और विंड के लिए अलग हो, जो कलर चार्ट पेपर होते हैं ना उसको यूज़ करके। और सबका टर्न आएगा और सब मुझे बारी बारी से टर्न वाइज उनका रोल प्ले करके दिखाएंगे। तो कोई विंड बनेगा, तो कोई सन बनेगा, तो कोई मैन बनेगा। तो आपको उनके बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। किसके बारे में? मास्क के बारे में। नाउ हियर आर द 2 sentences about the sun mask. First sentence is the sun mask is bright yellow in color. सन मास्क ब्राइट कलर का होता है, येलो कलर का। सेकेंड सेंटेंस इज इट इज राउंड इन शेप एंड हैज थिन ट्रायंगल्स अराउंड इट्स बॉर्डर्स रिप्रेजेंटिंग द सन रेज। है ना, वो राउंड के शेप में होता है और साइड में उसके बॉर्डर्स होते हैं जिससे सनराइज वो दिखाई दे। इस तरह से आप कोई और सेंटेंस भी लिख सकते हो। नाउ बिग विंड, अ बिग विंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन। विंड जो है बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, लीव्स गिर रही है, उसकी वजह से पत्ते गिर रहे हैं और ये जो तूफान है वो ट्रीज को भी नीचे गिरा रहा है और वो हाउसेस को भी नीचे गिरा सकता है। और मेरा जो घर है बहुत पुराना है, क्या वो भी नीचे गिरेगा? तो आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस राइट है या रॉन्ग है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस। फर्स्ट सेंटेंस है कि क्या विंड जो है हाउस को गिरा सकती है, राइट और रॉन्ग आपको यहाँ पे टिक लगाना है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, क्या वो खेतों को गिरा सकती है विंड। थर्ड सेंटेंस इज द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, एक बच्चे को गिरा सकती है विंड की हवा से, तूफानों से एक बच्चा गिर सकता है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, क्या वो ट्री को फूंक मार के गिरा सकती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, क्या वो रिवर को अपने तूफान जो है उससे रिवर को भी गिरा सकता है, उड़ा सकता है, ब्लो डाउन कर सकता है। आंसर्स आर द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, यस विंड जो है तूफानों से हाउस गिर सकता है, उड़ सकता है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, खेतों को वो नहीं उड़ा सकती, अपनी फूंक से विंड जो है नहीं उड़ा सकती। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, बच्चे को वो फूंक मार के गिरा सकती है क्या? नहीं। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, ट्री को वो अपनी फूंक से तूफानों से वो गिरा सकती हैं, इसलिए वो राइट है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर को भी विंड जो है ब्लो डाउन नहीं कर सकती, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो आपको जो सेंटेंस राइट है वहाँ पे राइट टिक लगाना है और जो सेंटेंस रॉन्ग है वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टोरी, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ हियर इज अ स्मॉल पोएम फॉर यू। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, सिंग विथ एक्शंस, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। आपको ये एक्शंस के साथ गानी है और याद रखो कि आपको स्माइल करते हुए गानी है। If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands.
If you are happy and you know it and you really want to show it. If you are happy and you know it, clap your hands, clap your hands. आपको ये पोएम गानी है, ठीक है? Now repeat this rhyme with actions also. If you are happy and you know it, nod your head. Nod your head means आपको अपने हेड को हिलाना है. If you are happy and you know it, stamp your feet. Stamp your feet मतलब आपको अपने पैरों से ताल बजाना है. If you are happy and you know it, say ha ha ha. अगर आप हैप्पी हैं और आपको पता है तो आप कैसे बोलोगे? हा 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 हा. If you are happy and you know it, do all four. Clap clap, nod nod, stamp stamp. और आप सच में हैप्पी हैं तो ये चारों चीज़ें कीजिए. तो If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. तो बच्चों आपको इसी तरह से इस पोएम को एक्शन के साथ इसी राइमिंग टोन में आपको लर्न करनी है और ये पोएम आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसे मुझे सुनानी है एक्शन करके. डू यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड पोएम? आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड आल्सो दिस पोएम. ओके, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स. Thank you so much. Thanks for watching.